हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का एंडोक्रीन सिस्टम जो आपके सेमेस्टर 2 सिलेबस में आ रहा है एक गो में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर योर सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट we have to know about the general study of the glands, the adrenal gland, the pancreas, thyroid and pituitary gland, then the difference between endocrine and exocrine glands, then the exact location and the shape of the endocrine glands in the human body, then the hormones that are secreted by the following glands, that is pancreas, only insulin and glucagon, then thyroid, only thyroxine, then adrenal gland we have cortical hormones and adrenaline, and pituitary we have growth hormone, tropic hormone, and ADH and oxytocin, and TSH, ACTH, and gonadotropic hormones, and effects of hypo and hyper secretions, that means over and under secretion of these hormones. So let's begin. So first, what are the exocrine glands? So exocrine glands are the glands of external secretion, meaning जो बॉडी के बाहर secretions हो रहे हैं उनके लिए. These are those that secrete substances on the body surface through a duct. So इसमें क्या क्या हो जाते हैं? Salivary glands, then mammary glands, sweat glands. They are some of the exocrine glands. Like sweat glands, you know, आपका पसीना कहाँ निकलता है? आपके बॉडी के बाहर you can see, right? So these are external secretion. Then they are also one main thing that they are secreted through a duct. Now coming to endocrine glands, so they are glands of internal secretion, meaning body के अंदर secretions हो रहे हैं. They secrete their respective substances directly into the bloodstream rather than through a duct. And these endocrine glands, they belong to the body's control system, and they produce hormones which help to regulate the functions of the cells in the tissues. And some glands are specific to either male or female, like testes in males and ovaries in females. Now let's have a quick look at the differences between exocrine glands and endocrine glands. So endocrine glands, the one which have internal secretions. So endocrine glands, they do not have ducts, but exocrine glands, they do have ducts. So endocrine, they directly they have their secretions supplied directly to the bloodstreams, but here they have ducts through which their secretions come out of the body surface, like you can see on the body surface. Then secretory products, endocrine glands that are inside the body, they secrete hormones in the body, but exocrine glands, they secrete sweat, enzymes, mucus, sebum, etc. Then route of secretion. So the secretory products here in endocrine gland, they are released directly into the bloodstream, eventually they reaching the target organ. So wherever that bloodstream goes, it will supply blood to all the organs, right? So that secretion that is made in the bloodstream, it will eventually reach the target organ through the bloodstream. Then in the exocrine gland, secretory products are released to an internal organ or the external surface through a duct. Now examples of endocrine glands, you have thyroid gland, parathyroid glands, pituitary gland, adrenal glands, etc. And here in exocrine glands, the ones the outer surface ones, so salivary glands, your saliva, they produce a saliva. Then we have pancreas, liver, Brunner's gland, esophageal glands, etc. But just remember, sweat glands, these are the main ones, right? Now, what is a hormone? Hormone are secretions from specific cells or glands in the body and are carried to all parts through blood, and their effect is produced in the target organs or cells, bringing about coordination between distant parts of the body. So hormones are secreted by whom? They are internal secretions of the body by the endocrine glands, like we just talked about here, and they are important for our body, and they are carried through all parts by blood streams, and their effect is produced in target organs, like whatever the specific organ for it is, or the cells of that organ, and it brings about coordination between the distant parts of our body. Now, what part do endocrine glands play here?
endocrine glands, they secrete the certain chemicals known as hormones. So the hormones are secreted by endocrine glands here, and hormones are extremely important secretions for the regulation of body activities. Now talking about endocrine glands, so we have 4 glands here that we'll be studying: adrenal gland, we have pancreas, thyroid gland, and pituitary gland. So let's start with adrenal gland. So location, it is present on top of each kidney. So if you see here, it's like a pyramid sort of a structure, and it is present on both the kidneys, and it has 2 parts. It has a central medulla and it has a peripheral cortex. All right, now first, adrenal medulla, we're looking at the parts now. So first, it secretes adrenaline, that is so it prepares the body for fight or flight situation by providing extra strength. Extra adrenaline is released when you're in stress or when you're excited or angry. Now, what are the functions of adrenaline? It increases the heartbeat and the blood pressure. It increases the blood supply to the muscles. Then it decreases the blood supply to the skin and visceral organs, and more glucose is released by the liver. Why is more glucose released? For your consumption, because you need a lot of energy. So glucose will give you instant energy, so more glucose is released by the liver. Now coming to the adrenal cortex, now the main hormone it secretes is cortisone, and cortisone is also of 3 types. We have mineralocorticoids, then we have glucocorticoids, then we have sex corticoids. So mineralocorticoids, they regulate mineral metabolism, and they release sodium and potassium ions. Then we have glucocorticoids, then we have they regulate carbohydrate, protein, and fat metabolism. Then sex corticoids, they are different male and female, and an overgrowth of cortex in young children, it leads to premature sexual maturity. Like they hit puberty early, and you get to see like the development of breasts in women, and like that. Then hyposecretion of cortisone, it causes Addison's disease. Then there's loss of weight, there's nausea, low blood sugar, increased susceptibility to infections. Then we have hypersecretion of cortisone, it causes Cushing's syndrome, obesity, high blood sugar. Then we have osteoporosis, weakness, salt and water retention. Now pancreas. Now pancreas are a special case. They act as both a duct gland and a ductless gland. That means you have their secretions, on the surface of the body also, and as well as inside the body. So as a duct gland, that means when it makes secretions outside the body, as a duct gland, it secretes pancreatic juice into the duodenum for digestion. And as a ductless gland, it has special hormone secreting group called islets of Langerhans, which produce 3 hormones, that is insulin, glucagon, and somatostatin. But we're only learning about insulin and glucagon as they're in our course, and somatostatin is not in the course. So again, remember, as a duct gland, it secretes pancreatic juice into the duodenum, that is a part of your intestine, for the digestion purpose. And as a ductless gland, inside the body, it has a special hormone secreting group called islets of Langerhans, and they produce 3 hormones: insulin, glucagon, and somatostatin. Now coming to insulin. Firstly, it is secreted by the beta cells. Then second, it checks the rise of sugar level in the blood in 2 ways. Firstly, it promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. And second, it stimulates deposition of extra glucose of the blood as glucogen in the liver and muscles. That means like as fat deposit, you can say here. And here it is promoting use of glucose, meaning it is utilizing that as food here, and in the body, so that it can reduce the blood sugar level. Then under secretion of insulin, अगर insulin कम secrete हो तो it causes diabetes mellitus. That means आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी अगर कम होगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है. बॉडी के आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कौन करता है, इंसुलिन करता है. और अगर
इंसुलिन ही कम सेक्रीट होगा तो मतलब शुगर ज़्यादा होगी, राइट? तो दैट कॉजेज डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपोग्लाइसीमिया। एंड इसमें क्या हो जाएगा, द पर्सन विल हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड एंड विल एक्सक्रीट अ लॉट ऑफ यूरिन लोडेड विद शुगर। दैट मीन्स जो यूरिन हमारा नॉर्मली जो होता है उसमें शुगर नहीं होती है, बट इस इंसान को जिसकी डायबिटीज़ मेलिटस होगी उसके ज़्यादा होगी शुगर ब्लड उसके यूरिन के अंदर, और काफ़ी एक्सक्रीट करेगा, मीनिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाएगा। देन द पर्सन विल फील थर्स्टी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन। अगर बहुत बार यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट होगा तो पानी का लॉस बॉडी से होता जाएगा, तो इसीलिए काफ़ी उसको इंसान को बड़ा थर्स्टी लगता रहेगा। एंड द पर्सन विल ऑल्सो लूज वेट एंड बिकम वीकर। नाउ ओवर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन अगर ज़्यादा निकल जाए, मतलब कि अगर ज़्यादा निकल गया इंसुलिन मतलब कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कम होगा। सो अगर ज़्यादा निकल जाए तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ लोअर्ड ऑब्वियसली, एंड द ब्रेन में एंटर अ स्टेट ऑफ कोमा इफ़ द लेवल बिकम्स टू लो इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अगर बहुत कम हो जाता है तो कोमा में चला जाता है ब्रेन। अगर थोड़ा सा भी थोड़े से समय के लिए भी हो जाए तो भी हो जाता है। एंड दिस कैन हैपन टू अ डायबिटिक पर्सन, मतलब जो ये वाला जिसके इंसुलिन ज़्यादा जिसके इंसुलिन कम निकलता है, अगर उसके इंसुलिन ज़्यादा निकल गया अचानक से, तो अगर उसके ओवरडोज हो गई इंसुलिन की तो उसको इंसुलिन शॉक आ जाएगा, ठीक है? एंड रिमेंबर, इंसुलिन क्या करता है, इट अनेबल्स सेल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूज़ इट और कन्वर्ट इट टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन नहीं करता, इट जस्ट एनेबल्स द सेल्स, मतलब वो एनकरेज करता है सेल्स को, एक तरह से आप कह सकते हो कि एनकरेज कर रहा है सेल को अब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज, और उसको या तो उनको यूज़ कर ले बॉडी सेल्स, नहीं तो उनको कन्वर्ट कर दे एज ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर करने के लिए। नाउ सेकेंड, जो एक हमने इंसुलिन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन इज सेक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स एंड इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज। मतलब लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करने के लिए लिवर के अंदर ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है। देन इट रेजेस द शुगर लेवल इन ब्लड। इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन कम कर रहा था ब्लड शुगर लेवल, बट ग्लूकागॉन क्या करता है, इट रेजेस द शुगर लेवल इन ब्लड। एंड नाउ कमिंग टू थायराइड। तो थायराइड क्या है, उसका शेप, इट हैज़ अ बायलोब बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई। ये आपकी नेक रीजन में यहाँ पे होता है, ये लैरिंग्स है आपका, एंड यहाँ पे ये है, एंड ये ट्रैकिया मतलब कि आपका विंड पाइप, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स यहाँ पे है, उसके नीचे, इन फ्रंट ऑफ द नेक, एंड इट सेक्रीट्स टू हॉर्मोन्स, थायरॉक्सिन एंड calcitonin, but we will only be learning about thyroxine. So here thyroxine क्या करता है, it regulates the basal metabolism, the rate of cellular oxidation that results in heat production at rest. Then second, it also influences the general growth of the body, ossification of the bones and body temperature, mental development, etc. So it's very important as well. It does not only do it does not only regulate the basal metabolism of the body, but it also influences so many other things like your general growth, that is so important, and your it regulates your body temperature. It should be normal, like around 37 degrees Celsius, that एंड मेंटल डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अंडर सेक्रीशन, अगर ये थायरॉक्सिन कम निकले किसी के अंदर तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू सिंपल गॉइटर या क्रेटिनिज्म या माइक्सोडेमा। और उसके किसी के थायरॉक्सिन ज़्यादा निकल जाए तो उसके क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड इससे क्या हो जाता है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर हो जाता है। एंड यहाँ पे एक ट्रिक है, हाइपो मतलब हमेशा कम या छोटा, और हाइपर मतलब हमेशा ज़्यादा, ठीक है? अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि हाइपो कौन सा होता है, हाइपर कौन सा होता है? तो हाइपर क्या ऐसे कर सकते हो, आपने सुना होगा डेली लैंग्वेज में आप ऐसे बोलते हो कि ये इंसान तो कितना हाइपर है, कितना एंग्री हो जाता है छोटी छोटी बात पे। तो ये जो इंसान हाइपर होगा उसमें क्या होगा, एंग्री ज़्यादा होगा। आई नो इट्स अ वेरी डम वे टू रिमेंबर थिंग्स, बट या जस्ट सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ वन वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ सिंपल गॉइटर में क्या होता है, you have the enlargement of the thyroid gland and it is visible as the swelling in neck, and it is caused due to insufficient quantity of iodine in food. तो अभी आपने देखते होगे कभी नमक के एड्स आते हैं टीवी पे, तो बोलते हैं आयोडीन वाला नमक, राइट? क्यों बोलते हैं? बिकॉज हिली एरियाज़ जो होते हैं उनके सॉइल के अंदर
आयोडीन की कमी होती है, तो वहाँ के लोग दे आर मोर प्रोन टू हैविंग सिंपल गॉइटर, क्योंकि अगर उनके फूड में आयोडीन नहीं होगा, नॉर्मल जो फूड है उसके अंदर, तो उनको एक्स्ट्रा लाइक अलग से लेना पड़ेगा, तभी वो सॉल्ट के ऐड में ऐसे डालता है कि आयोडीन वाला नमक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आयोडीन की वजह से अगर कम हो आयोडीन फूड में तो सिंपल गॉइटर हो सकता है. देन क्रेटिनिज्म अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन शोइंग ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन, एंड दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली एट्रोफी ऑफ थायराइड. तो क्रेटिनिज्म क्या करता है, चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ को अफेक्ट करता है. ड्वार्फिज्म आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं 16 ईयर्स के लोग होते हैं, बट वो बहुत छोटे होते हैं हाइट के अंदर. क्यों? दिस इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज्म, एंड दिस माइट बी बिकॉज ऑफ क्रेटिनिज्म इन दैम. एंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि इतनी उम्र के हो जाता है फिर भी लर्निंग में उनको प्रॉब्लम होती है. सो इट इफेक्ट्स योर मेंटल ग्रोथ इज वेल. This is due to defective development or early atrophy of thyroid. Now, myxedema. It affects an adult if his or her thyroid does not function properly. The person becomes sluggish with the swelling on the face and hands. मतलब sluggish मतलब sort of lazy हो जाता है person, and उसकी पूरी बॉडी में ऐसा आपको स्वेलिंग दिखने लग जाता है, जैसे स्पेशली फेस एंड हैंड्स पे काफ़ी स्वेलिंग दिखेगा आपको. ना एक्सोथैलेमिक गोइटर ये किसके लिए है, जब हाइपर सेक्रीशन हो जाए, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, जब ज़्यादा निकल जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, देयर इज़ इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि डाइजेशन जल्दी हो जाता है, जो भी खा रहे हो सब जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है. देयर इज़ रैपिड हार्ट बीट, देन यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रोट्रूडिंग आइज़, मतलब बल्ज आउट हो जाती है आइज़, बहुत बाहर निकलने, ऐसे लगता है जैसे बहुत बाहर निकल गई है और अपने ऑर्बिट से. देन रेस्टलेसनेस. एंड अब टू समराइज ऑल ऑफ दिस, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, अगर अंडर सेक्रीशन हो गया यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उससे सिंपल गॉइटर होएगा. सिंपल गॉइटर में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड हो जाता है. क्रेटिनिज्म होता है, क्रेटिनिज्म क्या करता है, ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है. देन माइक्सोडेमा से क्या हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स, देन यू हैव स्लगिशनेस. देन अगर ज़्यादा निकल जाए थायराइड, ओवर सेक्रीशन हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा. और इसमें एक चीज़ क्या, कौन सा गॉइटर होता है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर. इसमें क्या हो जाता है, प्रोट्रूडिंग आइज़, मतलब कि बल्ज आउट हो जाती है आइज़. देयर इज़ इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्टलेसनेस, लाइक दिस. नाउ कमिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो हमने अभी किस किस की बात करी, सबसे पहले हमने बात करी एड्रीनल ग्लैंड की, फिर हमने बात करी पैनक्रियास की, अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी की. तो पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल अदर एंडोक्रीन ग्लैंड्स. मतलब ऐसा लगता है इसकी लोकेशन ब्रेन में यहाँ पे है, और ऐसा लगता है कि ये सारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. लोकेशन एंड साइज़ अगर देखो तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन अबाउट द साइज़ ऑफ अ पी. एक मटर के दाने जितना साइज़ होता है इसका, आप सोच सकते हो इतना छोटा साइज़, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्रीन ग्लैंड्स. एंड कहाँ है ये, इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन. यहाँ ब्रेन के बीच में दिख रहा है आपको पार्ट, लाइक मिड ब्रेन है, एंड उसके बीच में हाइपोथैलेमस के नीचे एक हैंग करता हुआ दिखता है. एंड इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट लोब्स, one is anterior pituitary and one is posterior pituitary. So hormones from anterior pituitary, where we have growth hormone, we have thyroid stimulating hormone also called as TSH. आपको इसका फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है, जैसे अब की बार के आप स्पेसिमेन पेपर में देखो तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट में जो टेबल है उसके अंदर ये पूछा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ TSH. तो आपको ये आना चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन वी हैव गोनाड स्टिमुलेटिंग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. दे आर लाइक द ट्रॉपिक हार्मोन्स बेसिकली. इस पर भी क्वेश्चन आया है बहुत. फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, ट्रॉपिक हार्मोन विद एन एग्जाम्पल दीजिए आप. देन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, इसका भी आपको पूरा फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है. सो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. Now the hormones that we get from posterior pituitary, ये कहाँ से थे, anterior pituitary से 4 हार्मोन थे. Now hormones from posterior pituitary. So we have antidiuretic hormone that is also called ADH और vasopressin, ये भी आ सकता है, and oxytocin. So let's look at all their uses and what they do, their function in the body. So growth hormone as the name suggests itself, it is essential for normal growth of the body. It is also called somatotropin, so confuse नहीं होना है, somatotropin.
ग्रोथ हार्मोन. इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ. अगर इसका अंडर सेक्रीशन हो जाए, मतलब कि अगर कम सेक्रीट हो ये आपकी बॉडी में, तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा. तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब छोटे रह जाओगे हाइट में. एंड अगर ज़्यादा निकल गया, ओवर सिक्रीशन हो गया, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो रहा है, तो इट रिजल्ट्स इन जाइगैंटिज्म. उसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी लॉन्ग बोन्स हो जाती है, और अगर बोन्स लंबी होंगी तो इंक्रीज इन हाइट होगा. एंड द पर्सन ऑल्सो डेवलप्स अ लार्ज नोज एंड थिक लिप्स, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमीगली. ये ओवर सेक्रीशन का ही ये पार्ट होगा, जिसमें लार्ज नोज हो जाएगा, थिक लिप्स हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग बोन्स हो जाती है. अब वो बोन्स हर जगह की लॉन्ग हो रही है, पता है आपको. लाइक इट्स नॉट ओनली योर लेग्स एंड योर हैंड्स, इट्स ऑल्सो योर नोज एंड ऑल दी अदर बोन्स, इवन द स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट इन योर बॉडीज. तो वो सब बड़े हो रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एक्रोमीगली. नाउ second is thyroid stimulating hormone, TSH. It activates thyroid to secrete thyroxine, nothing else. It just activates thyroid. आप थायराइड ही करता है सेक्रीट थायरॉक्सिन, बट जो हार्मोन इसको एक्टिवेट करा है थायराइड को, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Then third is gonad stimulating gonadotropic hormones. It regulates the activities of the testes and ovaries, जो कि मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती है. लाइक टेस्टिस मेल्स में होती है और ओवरीज फीमेल में होती है. सो इट रेगुलेट्स दी एक्टिविटीज़ ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज. कौन है ये? गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन अड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH. वापस बोलती हूँ, इसको कैसे याद करें, काफ़ी लंबा नाम है इसलिए बार बार बोलते जाओ. अड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, अड्रीनो, ए से अड्रीनो, कॉर्टिको, फिर ट्रॉपिक हार्मोन. बट ये रिमेंबर करना, ये ACT एक ही बड़ा सा शब्द होगा. देन ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अड्रीनल कॉर्टेक्स. हमने अभी अड्रीनल ग्लैंड हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, और अड्रीनल के अंदर भी हमने पढ़ा था एक मेड्यूला है, एक अड्रीनल मेड्यूला है, एक अड्रीनल कॉर्टेक्स है. तो इसके अंदर जो अड्रीनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे वो कौन है? अड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. Now, what are tropic hormones? It's a very important topic. So, the term tropic hormones refers to such hormones which stimulate other endocrine glands to produce their specific hormone, such as gonadotropic hormone secreted by anterior pituitary, and also stimulate gonads to produce certain hormones. Tropic means influencing the activity of the named organs, such as thyrotropic for thyroid, adenocorticotropic for adrenal cortex, etc. बेसिकली ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है जो खुद तो कुछ नहीं करे, मतलब खुद क्या करे, दूसरे जो ग्लैंड्स है, जो एक्चुअल एड्रीनल जो एक्चुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अपने जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. तो उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कौन करते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स. तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, इतने सारे जो हमने अभी लर्न करे, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग है, जैसे गोनाड स्टिमुलेटिंग है, जैसे अडीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक. ये सारे क्या करें? दे जस्ट स्टिमुलेट द एंडोक्रीन ग्लैंड टू प्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक हार्मोन. तो आप इनके एग्जांपल्स भी लिख सकते हो. देन व्हाट, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. तो एंटी से A, ड्यूरेटिक से D, एंड हार्मोन से H. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन. देन इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स विद राइज इन ब्लड प्रेशर. It also acts on the kidney, increasing reabsorption of water from kidney tubules. Then अगर इसकी deficiency हो, अगर ये कम हुआ आपकी body में, तो it causes diabetes insipidus, that is also called water diabetes, in which urination is very frequent. मतलब उसके अंदर जो हमने देखा था diabetes mellitus, उसके अंदर भी frequent था urination, but इसके अंदर और frequent होगा, and this results in the loss of water from the body and the person becomes thirsty. तो बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर होता रहेगा तो पर्सन थर्स्टी होता रहेगा. तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का ADH में डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वाटर डायबिटीज़ हो जाती है, दैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस. नाउ रिमेंबर, डायबिटीज़ मीन्स passing out excessive amount of urine. There are two types of diabetes that we learned about. Diabetes mellitus, that contains that the urine contains sugar caused due to insufficient insulin. But in diabetes insipidus that we just learned about, there is no sugar in the urine. Insipid means tasteless and referring to the absence of sugar in the urine, and melly means honey or sweet. So you can remember it this way. melly अगर आप हिंदी में शब्द जानो तो मधु बोलते हैं हनी को, राइट. तो mellitus, वही डायबिटीज़ mellitus
हनी, आई थिंक ये 8th क्लास में भी था, तो इट्स नॉट सो हार्ड टू रिमेंबर. द ओनली थिंग दैट इज़ न्यू हियर इज़ डायबिटीज़ insipidus. I think you'll be able to remember that also. Now, oxytocin, last hormone. It stimulates vigorous contractions of the uterus in a pregnant mother, leading to the birth of the baby. So ऐसे करके आ सकता है क्वेश्चन MCQ के अंदर कि which of the following hormones helps in the birth of a baby. So that is oxytocin. क्या करता है? It just stimulates vigorous contractions of the uterus. एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन. जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनके जो मिल्क जो आता है तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? मिल्क इजेक्शन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है. नाउ जस्ट अ समरी ऑफ ऑल ऑफ देम, ऑल दी हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस एंड देयर अंडर सेक्रीशन ओवर सेक्रीशन. सो लेट्स लुक एट दिस. एड्रीनल ग्लैंड था हमारा सबसे पहले, उसके अंदर दो पार्ट्स से. एड्रीनल कॉर्टेक्स था एक तो, और एक एड्रीनल मेड्यूला था. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हम क्या क्या पढ़ रहे थे? एक होता है मिनरलोकॉर्टिको स्टेरॉइड्स जो एल्डोस्टोन, एंड एक था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. एंड एड्रीनल मेड्यूला से एड्रीनलिन था. सो मिनरलोकॉर्टिको कॉस्टेरॉइड्स क्या करता है? इट रेगुलेट्स द प्लाज्मा सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन. इट देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स. एड्रीनलिन क्या करता है? इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उसको एड्रीनलिन कहते हैं. नाउ अंडर सेक्रीशन अगर हो जाए किसका? इस एड्रीनल कॉर्टेक्स का, तो क्या हो जाता है? एडिसन्स डिजीज़ हो जाता है. अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए तो कुशिंग्स डिजीज़ बोलता है इसको. एंड इसने एड्रीनल विरिलिज्म लिखा है. पैनक्रियास जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होता है, और अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स है, बट डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन करता है और ये सिलेबस में नहीं है. तो लेट्स लुक एट बीटा सेल्स. तो बीटा सेल्स इंसुलिन को करते हैं, हार्मोन को सेक्रीट करते हैं, एंड इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. और अगर ये इसका अंडर सेक्रीशन हो जाए तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है. अगर ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को करते हैं सेक्रीट, और अगर ये ग्लूकागॉन का प्रिंसिपल एक्शन क्या है? इट रेजेस द ब्लड शुगर लेवल. एंड थायराइड के दो हैं, थायराइड ग्लैंड के, एक थायरॉक्सिन है, एक कैल्सिटोनिन है. कैल्सिटोनिन सिलेबस में नहीं है तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट. थायरॉक्सिन क्या करता है? इट प्रमोट्स द टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन एंड ऑल, उसमें भी काफ़ी वो इसका रोल प्ले करना है. अगर इसका अंडर सेक्रीशन हो जाए तो सिंपल गोइटर हो जाता है, क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड माइक्सोडेमा इन एडल्ट्स. एंड अगर इसका ओवर सेक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाता है? एक्सोथैलेमिक गोइटर हो जाता है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी एक एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है इसका, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है. अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, दैट इज़ सोमैटोस्ट्रोपिन जिसको कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन. एंड इसमें जनरल बॉडी ग्रोथ इसका एक्शन होता है, मेन प्रिंसिपल एक्शन. और अगर इसका अंडर सेक्रीशन अगर कम निकले तो डुओफिज्म हो जाता है, अगर ज़्यादा निकल जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाता है. देन सेकेंड इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH. ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स. एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. It stimulates thyroxine secretion. It basically activates the thyroid gland to secrete thyroxine hormone. Then we have vasopressin, that is ADH, and it increases the reabsorption of water from the kidneys, and the contraction of blood vessels cause rise in blood pressure. And then last we have oxytocin from posterior pituitary, and it causes the contraction of your uterus muscle during childbirth. It helps in childbirth. So that's it for this video, and we have completed endocrine system. And thank you so much for watching, and all the best for your exam tomorrow.